So as earlier discussed that it is only possible that a system is doing work, then heat must be transferred from the hotter body to the colder body, and reverse cannot happen until unless we are doing some work externally, and that happens in case of fridge, that vegetables kept at the lower temperature, heat is being taken by the system from those vegetables and it is being transferred to a part that is already hotter, radiator, at a temperature T, which is more than the temperature of the vegetables, and a difference of the whatever is the difference between the two heats is there. Heat taken from the vegetables, heat transferred to the radiator, difference of that is the work done, and that work must be done with the help of the electricity. So that is the second law of the thermodynamics. So it is related with the irreversible thermodynamics, since system or change will be a spontaneous change or irreversible change if temperature of system is more than the temperature of the environment. So here ds, change in entropy, it should be minus dq upon t system plus dq upon t environment, that should be greater than 0, and the condition says that t system should be greater than the t environment. Now again, making it more descriptive, change in entropy will be due to the two factors. One, how entropy changes due to surroundings, and how entropy changes by internal change. So it is a part of two components. One is the internal change in entropy, another the external change in entropy. So entropy can be taken as ds1, that is for the phase 1, ds2 for the phase 2. It means now I am considering two phases. So there is a phase 1 and phase 2. So change in the phase 1 is the entropy change, that is the ds1. In the second phase it is the ds2. Now ds1 can be written as dq upon t1 with 1 as the superscript. In the same manner, change in entropy in the second phase is written as the change of heat and the temperature of the second phase here. Then d1q and d2q, they can be splitted as d1q is equal to heat exchange externally and heat exchange internally. So here again same relation for the second phase. It is d2q is the heat exchange internally as well as externally. तो जितनी भी calculations आ रही हैं, I think you are able to see here that two part are ever considered here. One is the internal part, another as the external part. Mostly the part which is happening in internally, that is equal to 0. It is the exchange that is occurring there with the external part, not the internal part here. Now ds1 can be written as substituting the value of d1q, जो पीछे ये रिलेशन था यहाँ पर ds1 इज इक्वल टू d1q अपॉन t1 और d2q अपॉन t2, इसमें जो वो वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है. एज यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू यू विल गेट दिस पार्ट. तो वन पार्ट एक्सटर्नल है, सेकेंड पार्ट जो वो इंटरनल पार्ट है. नाउ हाउ मच चेंज इन द एंट्रोपी टेक्स प्लेस फ्रॉम फेज 1 टू फेज 2. तो दोनों का डिफरेंस लेना है, ना कि समेशन लेनी है. अब डिफरेंस लेना है, समेशन लेनी है, क्या करना है? तो वैसे तो बुक में थोड़ा बहुत डिफरेंस दिया हुआ उसने, लेकिन मैं इसको आपको थोड़ा सा अलग वे से भी अंडरस्टैंड करवा देता हूं. एक फेज में एंट्रोपी चेंज हो रही है, दूसरे में भी, तो दोनों का डिफरेंस भी लिया जाता है. हाउ मच चेंज इन द एंट्रोपी इज देयर प्रोवाइडेड द हीट एक्सचेंज टेकन दे आर टेकन पॉजिटिव. अगर आपने हीट एक्सचेंज दोनों पॉजिटिव लिए हैं. अगर आपने हीट एक्सचेंज पॉजिटिव नहीं है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल रखा है, जैसे कि एक फेज ने हीट ट्रांसफर की तो वहां पॉजिटिव होनी चाहिए और दूसरे ने गेन की तो वहां पर नेगेटिव होना चाहिए, तो तब उनका सम लिया जा सकता है. तो चाहे
सिंपल लिख करके डिफरेंस ले लो, चाहे साइन कन्वेंशन फॉलो करके फ्रॉम वेयर इट इज लॉस्ट दैट इज नेगेटिव, फ्रॉम वेयर इट इज गेन्ड दैट इज पॉजिटिव, तो उस तरीके से प्लस और माइनस साइन जो इंक्लूड किए जा सकते हैं. आई हैव टेकन ओनली द डिफरेंस हियर कि एक और दूसरे का डिफरेंस जो वो कितना बन रहा है, दैट इज द चेंज इन एंट्रोपी है. सो दैट इज द नेगेटिव, दिस साइन अगेन नेगेटिव. देन एक्सटर्नल वाले पार्ट को इकट्ठा कर दो, इंटरनल वाले पार्ट को इकट्ठा कर दो, तो ये पार्ट इंटरनल आ गया और दूसरा पार्ट जो वो बाहर वाला पार्ट क्या है, एक्सटर्नल पार्ट है. सो हियर दिस पार्ट इट कंटेन्स DIQ एज कॉमन, दोनों में जो है वो DIQ जो है वो कॉमन आ जाएगा यहां से. सो इनसाइड यू आर लेफ्ट विद द D1 T1 माइनस 1 बाय D2 T2. तो यहां पर D2Q लिखा है मैंने फिलहाल पर, लेकिन इंटरनली जो हीट एक्सचेंज होगी, जो एक पार्ट हीट गिवन करेगा उतनी ही हीट दूसरा पार्ट जो वो लेगा. तो दोनों हीट को इक्वल करके मैंने D1IQ जो उसको पुटअप किया हुआ है. So here whatever is the internal change in the entropy is there, that the relation is this one. एक्सटर्नल वाले रिलेशन को मैंने निकाल दिया, पीछे जो रिलेशन था वो ये पार्ट जो एक्सटर्नल वाला है, ये पार्ट जो वो इंटरनल वाला है. तो इसमें से केवल इंटरनल वाला पार्ट पिकअप किया है, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू इंटरनल चेंज इज इक्वल टू हीट एक्सचेंज फ्रॉम द फेज 1 टू द फेज 2. सो D1IQ, सो D1Q जो इंटरनली हीट एक्सचेंज हुई एक फेज से दूसरे फेज को, एक में D2Q लिखा था, लेकिन वो जो है D2Q और D1Q वो आपस में इक्वल होंगे. रीजन बीइंग जितना एक हीट प्रोवाइड करेगा उतना दूसरा जो है वो उसको गेन करेगा. सो दैट इज द इंटरनल चेंज इन द एंट्रोपी हियर. सो अ फैक्टर सिग्मा इज डिफाइंड, दैट इज द increase in entropy, or it is the entropy production per unit time dt, that is given as D1IQ upon dt 1 by T1 minus 1 by T2. तो ये जो है वो रिलेशन आता है किसके लिए, एंट्रोपी प्रोडक्शन के लिए. किसके लिए आता है ये, एंट्रोपी प्रोडक्शन के लिए. इसमें क्या क्या फैक्टर हैं, सिग्मा जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब T1 की वैल्यू जो है वो लेस होनी चाहिए किससे, T2 से. सॉरी, T1 की वैल्यू हायर होनी चाहिए, हायर और लेस 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2. जितना T2 ज्यादा होगा उतना जो है नेगेटिव वाला फैक्टर कम आएगा और उतनी वैल्यू क्या है सिग्मा की पॉजिटिव होगी. इट मीन्स T2 शुड बी ग्रेटर देन द T1. मान लो इस तरह की कंडीशन पॉसिबल नहीं है कि T2 ग्रेटर देन T1 हो. When T1 is, you can say higher and T2 is lower, तो उस केस में ये 1 by T1 minus 1 by T2 वाला फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा. तो उस केस में ये जो हीट एक्सचेंज है ये भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. एंड नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इट मीन्स इट इज पॉजिटिव. सो ओवरऑल डिस्कशन ऑफ दिस इज देयर. इफ एक्सचेंज ऑफ हीट इज पॉजिटिव, देन द डिफरेंस बिटवीन द invert of these temperature it is also positive. If this 1 by T1 and 1 by T2 difference that is negative, then heat exchange is also negative. That is why sigma is always positive. So that is the entropy production. Now let us see how much entropy production is there due to a chemical reaction. पिछला जो हमने डिस्कस किया that is the entropy production due to the heat exchange. एक पार्ट जो वो दूसरे पार्ट से हीट एक्सचेंज कर रहा है, तो उसमें कितना जो है वो एंट्रोपी प्रोडक्शन हो रहा है. सेकेंड पार्ट नाउ इट इज ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, हाउ मच एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग. सो लेट अस डिस्कस दिस पार्ट. अगेन द चेंज इन एंट्रोपी, दैट इज द समेशन ऑफ टू कंपोनेंट. वन इज द इंटरनल चेंज, अनदर इज द एक्सटर्नल चेंज. सो फॉर द टाइम बिंग आई कंसिडर दैट DH is the amount of heat that is exchanged with the surroundings. DH is the amount of heat that is exchanged with the surrounding at temperature T. So for this portion which is the external
exchange of the entropy. I am writing as Q upon T. Q is the heat supplied at constant pressure, then it will be equal to dH. तो उसके बदले में मैंने यहाँ पर dH लिखा हुआ है. Now multiply T throughout. It is T goes here, it is TdS, that is equal to dH. It is T into D internal change in the entropy. Then minus this factor, that is equal to dH minus TdS. Now if you apply the simple thermodynamics, equilibrium thermodynamics, then dG is equal to dH minus TdS और डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस TdS. तो उसके बदले में क्या लिख लिया है मैंने यहाँ पर dG लिख दिया. इट मीन्स द इंटरनल चेंज इन एंट्रोपी इट इज इक्वल टू माइनस dG अपॉन T. सो जो इंटरनल चेंज इन एंट्रोपी है वो किसके इक्वल आ रही है? दैट इज accompanied by decrease in the free energy. तो ये एक आपके पास रिलेशन देता है जिससे जो है बिकॉज ऑफ फ्री एनर्जी डिफरेंस और डिक्रीज इन फ्री एनर्जी यू आर एबल टू कैलकुलेट द इंटरनल इंक्रीज इन द एंट्रोपी और इंटरनल एंट्रोपी प्रोडक्शन. नाउ वी आर कंसिडरिंग इट फॉर ए केमिकल रिएक्शन. सो फॉर ए केमिकल रिएक्शन चेंज इन फ्री एनर्जी दैट इज इक्वल टू माइनस SdT प्लस BDP. ये रिलेशन जो है वो रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स में हमने डिस्कस किया है. G वैल्यू पुटअप करनी है, G इक्वल टू H माइनस TdS. तो उसमें जो भी पार्ट आएगा वो Q रिवर्सिबल के इक्वल आता है, थोड़ा पार्ट कैंसिल हो जाता है और बाकी आपके पास माइनस SdT और BDP बचता है. नाउ व्हाट अबाउट दिस पार्ट? That is the mu I dni or mu gamma dn gamma. That part is the Gibbs-Hume equation. Open the reversible thermodynamics books and find out Gibbs-Hume equation. तो वहां पर कुछ मोल जो है वो एक कंपोनेंट के दूसरे में ट्रांसफर हो रहे हैं. That is a chemical reaction. Some mole of reactants they are being converted into the products. So that is what? That is a chemical reaction. So how much change in the free energy takes place? That is given by mu I dni or mu gamma dn gamma. So one part is due to the change in pressure and temperatures. Another part is due to the chemical reaction. That is the mu gamma and dn gamma. If you keep the temperature and pressure constant, then change in the free energy it is simply mu gamma and dn gamma. Because dt is 0 and dp is equal to 0. Now substitute this value of dz here in which relation? In the entropy relation, that dis is equal to minus dz upon t. So when you will substitute this value here, you will get minus 1 by t dg upon dt, that is minus 1 by t. It is the mu sigma. यहाँ dn gamma था, डिवाइडेड बाय dt भी आएगा क्योंकि dis अपॉन dt है तो डिवाइडेड बाय इसको क्या कर दिया मैंने dt लिखा है यहाँ पर. नाउ इफ यू रिकॉल इट देन dn गामा अपॉन dt दैट इज इक्वल टू v गामा. दैट इज इक्वल टू v गामा. ये रिलेशन जो वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर. किसमें? वो हमने फर्स्ट पार्ट में जो है वो डिस्कस किया हुआ है जहां पर हमने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ स्टोक्योमेट्रिक इक्वेशन जो क्लोज सिस्टम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में जो है वो उसको डिस्कस किया है. सो हेयर इट इज b गामा इंटू म्यू गामा. नाउ फर्दर let us define a factor here. It is a is equal to minus b gamma and mu gamma. This factor is given by the Prigogine. He has termed this as the affinity. क्या बोला हो इसको? affinity जो है वो टर्म बोली हुई है. dn गामा अपॉन dt जो है वो हमने पहले उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में जो वहां से डिस्कस किया है. एग्जाम में भी आता है तो आपको ये रिलेशन जो है वो याद होने चाहिए. इसके साथ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी आता है, लेकिन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय dt क्या आ जाएगा? दैट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन. और रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलेंगे? v को बोलेंगे. सो सिग्मा इज इक्वल टू dis अपॉन dt दैट इज इक्वल टू a by t into this is rate of the reaction, extent of reaction with respect to the time.
So substituting that value here, we will get sigma is equal to dis upon dt. It is A, that is the affinity term divided by Pregagine divided by temperature, and d zeta upon dt, that is the rate of reaction. It is the V. So from here, T taken to this side, it is T sigma is equal to A into V. T sigma, that is equal to affinity multiplied by the rate of the reaction. Sigma is the entropy production, और सिग्मा जो एंट्रोपी प्रोडक्शन है, तो एंट्रोपी प्रोडक्शन शुड बी ग्रेटर देन जीरो फॉर ए इरिवर्सिबल चेंज. इट मींस टी सिग्मा इक्वल टू ए वी क्या होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो. इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो. और सिग्मा की अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो यहां पर, देन इट इज डी आई एस, दैट इज द इंटरनल चेंज इन द एंट्रोपी. इट इज इक्वल टू 1/T. इट इज इक्वल टू 1/T. कौन सा रिलेशन है, पिछले वाला रिलेशन है. कहां रिलेशन डिस्कस किया, लिटिल अर्लियर डिस्कस हेयर, DIS. तो इसमें DT सारी जगह से यहां से डिलीट कर दो, तो यहां से DT डिलीट करते हो आप, देन इट इज 1/T म्यू सिग्मा एंड DN गामा. तो उसी तरह से आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा, दैट इट इज 1/T जो म्यू सिग्मा और बी गामा था उसके बदले में एफिनिटी सब्स्टिट्यूट किया, और डी जीटा अपॉन dt था तो वहां से dt रिमूव कर दिया, तो क्या बचा आपके पास डी जीटा. रो वर्ड लगा है. रो वर्ड किसके लिए है, दो तीन जगह उसने यूटिलाइज किया है. ही सेज दैट इज फॉर ए सिंगल रिएक्शन, जो ऊपर वाला रिलेशन है. लेकिन अगर एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं, तो किस स्टेप के लिए है, तो रोअथ स्टेप के लिए है, रोअथ रिएक्शन के लिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए. सो फर्स्ट के लिए है, सेकंड के लिए है, तो A1 फर्स्ट के लिए, A2 सेकंड के लिए. इसी तरह से ए रो जो है वो जनरल टर्म आ गई यहां पर. सो फ्रॉम हियर ए रो दैट इज इक्वल टू, इट इज म्यू रो एंड म्यू सिग्मा. तो दिस फर्स्ट पार्ट इट इज वी रो जो भी है ये, दैट पार्ट इज द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पार्ट. म्यू सिग्मा इज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ द इन द रोअथ reaction. It is the chemical potential. There may be a reaction where two phases are only there, one phase and two phase, or where you can say two chemical reactions are there. तो एक केमिकल रिएक्शन के लिए अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो आप ए की और V की, सो फ्रॉम हियर विच वन, दिस पार्ट हियर इट इज AV, it should be greater than equal to 0. So for one reaction it is A1 B1, it may be less than 0. For the another reaction it may be greater than 0. 0 के इक्वल नहीं होगा, लेकिन less than 0 हो सकता है और greater than 0 हो सकता है. What if the condition is followed that A1 B1 plus A2 B2 is greater than 0, then we will say the reaction 1 and reaction 2 are the coupled reaction. जब एक की एफिनिटी और उसका रेट प्लस सेकंड रिएक्शन की एफिनिटी और उसका रेट दोनों अगर आपस में ऐड करने पर ग्रेटर देन 0 आता है, तो हम उन रिएक्शन को बोलेंगे कपल्ड रिएक्शन. एक रिएक्शन के बाद दूसरा रिएक्शन जो वो फॉलो अप हो रहा है उसको क्या बोला जाएगा, कपल्ड रिएक्शन. सो हियर दैट इज द coupled reaction definition as well as what is meant by the coupled reactions. Here another term it is being introduced by the Pregagine, that is the affinity term. So affinities are there, rate of reactions are there, and we are also having the value for the entropy production in the due to chemical reaction. It is DIS, that is equal to 1/2. It is A rho and D zeta rho. So that depends upon the temperature of the system, that depends upon the affinity factor, that is chemical potential multiplied by the stoichiometric coefficient. It also depends upon the extent of reaction. जितना ज्यादा A रो की वैल्यू होगी, A रो इज नेगेटिव हेयर, A रो की वैल्यू जो नेगेटिव है ये, तो जितना A रो की वैल्यू होगी और जितना रिएक्शन ज्यादा प्रोसीड हो गया होगा, उतना एंट्रोपी चेंज जो है वो क्या होगी, greater than 0 होगी. If temperature is higher then this is less. If temperature is more, तो temperature वैसे इतना ज्यादा फर्क नहीं डालेगा,
because that value will remain positive for the positive value of the temperature. So that is the entropy production due to the chemical reactions. So remaining portion we will discuss next time.